force versus displacement graph force versus displacement graph, right? F versus x. F versus x, okay? F versus x, and then you make this graph. F is in Newton, work in meter. This is in Newton. This is in meter. Huh. Check his answers, okay? I've given a few questions, check his answers. So, from 0 to 2 meters, from x पे 0 to 2 meter, force has increased from 0 to 2 meters, force has increased from 0 to 2 Newton. Okay, 0 to 2 Newton. And then from 2 to 3 meter, the force is yeah, 2 Newton, yes. From x equal to 3 to 4 meter, the force is 0 Newtons, correct. And from 4 to 6 meter, the force is no -2. -2 नहीं बोलेंगे ना. From 0 to 2 from sorry 4 to 6 meters, the force has went from 0 to -1. Okay, force has gone from 0 to -1. Okay, if you ask in direction, yeah, it has gone to negative direction. Forces, yeah, it is opposite to displacement. Okay, ठीक है, you can say it is negative. Okay, now the concept is work done till x is equal to area covered till x. चल गेट बंद कर दो, पार्टीशन गेट. वर्क डन टिल x इक्वल टू एरिया कवर्ड टिल x. ठीक है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वर्क डन टिल 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब टिल x इक्वल टू 3 मतलब फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, ये वाला एरिया है. ठीक है, सो एरिया कवर्ड अंडर द fx ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं. वैसे मैंने पूरा नहीं लिखा, पूरा लिख लो. एरिया कवर्ड अंडर fx ग्राफ. ठीक है, ये एरिया इज एरिया कवर्ड अंडर fx ग्राफ. ठीक है, so what is the work done? लिखो work done till from x equal to 0 to x equal to 3. Work done from x equal to 0 to x equal to 3 is equal to एरिया. जल्दी से बताओ कितना कैलकुलेट करके. ये एरिया कितना है? रेक्टेंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया. निकाल निकाल ना जल्दी से बता दो. रेक्टेंगल का एरिया कितना है प्रियल? 2. इसका एरिया 2 है. रेक्टेंगल एरिया 2 और ट्रायंगल का एरिया कितना है? 1/2.
which is 2. So what is the work done from x equal to 0 to x equal to 3? 4 joule. 4 joule लिख लो. Work done from x equal to 0 to x equal to 3 is equal to 4 joule. इसमें किसी को डाउट है? नहीं. फिर लिखो एरिया अंडर द x, मतलब देखो ये वाला एरिया ना, ये एरिया पॉजिटिव है दोनों, पर ये एरिया कैसा है? नेगेटिव. सो व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम 4 to 6? 4 to 6, x equal to 4 to x equal to 6. ये एरिया कितना है न्यूमेरिकली? हाफ इंटू 2 इंटू 1. तो कितना हुआ ये? न्यूमेरिकली कितना है ये? 1. न्यूमेरिकली 1 है, बट जब इसका लोगे साइन के साथ तो कितना होगा ये? -1. तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक्चुअली तुमने हाफ इंटू बेस कितना था? 2, और इसका हाइट कितना था? -1, तो इसलिए -1 आया था आंसर. ठीक है. तो ये एरिया कितना है? व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम 4 to 6? -1 जूल. लिख लो जल्दी से. वर्क डन फ्रॉम 4 to 6 इज -1 जूल. इतना समझ में आ गया है? हाँ. अभी ना क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तुमको करना है. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम 0 to 6? 0 to 6 कितना है? करेक्ट. +3 जूल. नो, 4 - 1. ठीक है ना? गुड. Do question number 9 and 10 right now. Okay, I am sending you a photograph. See Zoom chat. People who are online see Zoom chat. Okay, people who are in the classroom see the computer screen. माउस किधर? माउस पकड़ ले लो माउस. इसमें देखो चैट होगा. वो ऊपर आएगा. दिख रहा है? 9 और 10 करना है. दिख तो रहा है? इनफ नहीं दिख रहा क्या? हाँ, बस टिक करो. 9 and 10. People who are online, you can see, right? जल्दी. Sir, only 9th and 10th. The 9th and 10th. Vikram. हाँ sir. Tell me answers, all answers for question number 9. Read the question and answer. एक second question पढ़ता हूँ. A particle is subjected to a force Fx that varies with position as shown in figure. Find the work done by the force on the body as it moves from x equal to 10 meter to x equal to 5 meter. I got 15 joules. First one. 10 to 5, ना? Except displacement negative -15 होगा. तो आंसर फर्स्ट पार्ट का है -15. 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है -15. Then second one will be 15 joules. 1 second. Equal to so x equal to 5 meter to x equal to 10 meter. 1 second. 5 meter to 10 meter 15 जूल. 15 joules. ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ. तो 10 से 5 कितना होगा? -15. ठीक है, सेम नहीं होगा. Okay. 10 to 15 क्या आंसर है? 10 to 15 and 9 joules. It is same as 10 to 12, no? 10 to 15 is 10 to 12 plus 12 to 15, and 12 to 15 part is 0.
ठीक है ना? And what is the total work done by force over distance from x equal to 0 to x equal to 15? I got 44.5 joules. Has everyone got this? Even I got 3 joules. C. You got 3 joules. Yeah, only 3. 10 से 15 पूछ रहा है तो 10 से 12 का है, 10 से 12 हाफ बेस हाइट, हाफ 2 into 3, हाफ 2 into 3 कितना होता है? 3 होता है ना? 3 जूल है उसका आंसर सी पार्ट का, because the area of the triangle from 10 to 12 is 3 and from 12 onwards there is no work. Okay, Sir, for D, shouldn't it be 27 joules? तो पहले सी समझ में आया So कि wait, So what's the answer for हाँ. C? पहले सी पार्ट का 3 जूल है, समझ में आया क्या? हाँ हम्म, sir. विक्रम, हाँ सर समझ रहा. और बस उसके बाद फिर बस एक टोटल एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 प्लस क्या कितना था ये? ट्रायंगल 2 प्लस ट्रायंगल 1 कितना है बच्चों? अच्छा वो ना वहाँ पे ना शायद तुम लोग का अलग अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो 4 पे जो वैल्यू है वो ठीक से दे नहीं रखी, मतलब हम जो ग्राफ जो बनाया है तो x इक्वल टू 0 पे 4 0, x इक्वल टू 0 पे 4 0, ठीक है? x इक्वल टू तुमको लग रहा है कि 4 पे वैल्यू 3 पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखते हैं, इसलिए पहले ट्रायंगल का जो एरिया है उसको छोड़ दो, पहले ट्रायंगल का एरिया तुमने निकाला हाफ इंटू 4 इंटू 3, ये निकाला तुम लोगों ने? अगर ये निकाला तो सही है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, समझ में आ गया? फिर रेक्टेंगल का एरिया तुमने निकाला हाफ इंटू 5 इंटू 3, हाफ इंटू सॉरी 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, सही है, 9 आ गया आंसर। हाफ इंटू 6 इंटू 9 आएगा ना रेक्टेंगल का एरिया, तो 9 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 3 6, 15, 15 प्लस 3 18, 18 निकाला तो सही है किसी ने। तुम बेसिकली ना ट्रेपेजियम का एरिया है वो निकालना है, ठीक है? 18 वो बीच वाले रेक्टेंगल। हाँ ठीक है, तो लेकिन एक्चुअली जब देखोगे ना तो ग्राफ में वो नहीं बनाया उन्होंने, क्लियरली नहीं दिया, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के देता है, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं ना, ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट लिखो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस, देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस, those forces under which work done is path independent, path independent, path independent, those forces under which the work done is path independent is called are called conservative forces, okay? अब सेकंड लाइन नॉन कंजर्वेटिव अपने आप लिख दो, those forces under which work done is path dependent, yes लिख दो अपने आप, और टेबुलर फॉर्म में लिखना, ठीक है? टेबुलर फॉर्म में कोई बात नहीं, अभी लिख दे, नेक्स्ट लाइन से टेबुलर फॉर्म में लिखना, टेबुलर जैसे वो ना कंपेयर वाला टेबल होता है वैसे, ठीक है? लिख लिया? देखो work done in a closed path is 0 in a conservative field, work done in a closed path is 0 WD Western Digital, in a closed path is 0 in a conservative field. नेक्स्ट लाइन क्या है? Yes, work done is not 0 in a closed, work done in a closed path is not 0 in a non-conservative NCF.
The short form of non-conservative field is NCF. Okay, ठीक है, लिख लिया। दो पॉइंट हो गए दोनों के। तीसरा पॉइंट है PE is defined for CF. PE, potential energy, is defined for conservative CF. PE is defined for CF. फिर क्या लिखोगे? PE is not defined for NCF. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। फिर से बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तीन फोर्सेस हैं। ये कैसे हैं? ये कंजर्वेटिव है, इसीलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की होती है स्प्रिंग एनर्जी। सबके फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट for non-conservative force, write frictional forces oblique viscous forces. Friction forces oblique viscous forces. ठीक है, ओके। नाउ जस्ट राइट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। हाफ mv। चलो अभी नहीं रुको, पहले एक चीज बतानी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। ओके, concept is that suppose you have work per energy, suppose you have make an inclined plane, point A, point B, point C, a mass m है, ठीक है। it slides down on the path AB. Okay, find the work done. So this height is h, this is theta, okay, and this base is B. Okay, you can find the hypotenuse using trigonometry. Sin theta is equal to h by AB, right? हाँ, तो AB कितना है? h cosec theta. Think one step ahead, okay? h cosec theta, ठीक है? Fine. अब ये बताओ, if you find the work force on the mg, ग्रेविटी का फोर्स ऐसा है, इसको दो में तोड़ेंगे, एक तोड़ेगा ऐसा, कितना आएगा वो? कितना आता है? वेरी गुड, mg sin थीटा। और एक आता है वर्टिकल ऐसे ना, mg cos थीटा। अभी which force is perpendicular to displacement, which vector? हाँ, तो वो नहीं आएगा। वर्क डन, मैं पूछ रहा हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी, इट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वही वाला लेंगे ना जो एंगल लाइन में है, बस परपेंडिकुलर वाला वी विल नॉट टेक। सो इट विल बी mg sin थीटा इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? h cosec थीटा। h cosec थीटा है अगर लिखा हुआ है, तो h cosec थीटा और sin थीटा कट जाएंगे ना, तो कितना आएगा? mgh आएगा। क्या आएगा? mgh आएगा। समझ में आया? ठीक। अब देखो, तो ये पाथ क्या था? यहां से ऐसे लाए थे ना, समझ में आया ये कि नहीं आया? ऐसे लाए ना पाथ, यस और नो?
क्या बेटा, समझ में नहीं आ रहा? निर्वाणा। हम्म। दूसरा बात ये है, दूसरा बात ये है कि आप ए से भी डायरेक्ट मत जाओ, आप मस्ती करो थोड़ा रास्ते में, ए से सी जाओ और फिर सी से बी जाओ, ठीक है? तो पाथ वन, ये था पाथ वन में वर्क था, दिस वाज वर्क इन पाथ वन विच इज डब्ल्यू इन पाथ ए बी डायरेक्ट, ओके? नाउ आई विल फाइंड वर्क डन इन पाथ ए टू सी एंड देन टू बी, ओके? अच्छा चलिए बताइए, इन दिस इज वर्क ए टू सी प्लस डब्ल्यू सी टू बी, यस और नो? ठीक। अच्छा ए टू सी में अगर ब्लॉक ऐसे जाता है, ब्लॉक है ना जो ये, दिस इज योर ब्लॉक एंड इट गोज, सो ब्लॉक ए से स्टार्ट होता है और फिर नीचे जाता है, ओके, एंड देन ऐसे जाता है, ठीक है? जब नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच है, और डायरेक्शन बोलो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? डाउनवर्ड है, ठीक है? अच्छा फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है इस पे? mg, वो किस तरफ है? डाउनवर्ड है, तो दो वर्क निकलेगा तो कितना आएगा वो? mgh आएगा, क्योंकि mg और h और cos जीरो, मतलब दोनों लाइन में तो मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट ना। ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस हैपनिंग? या सो WAC तो mgh आएगा, ये सर नो? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है। प्लस WCB कितना आएगा? WCB में पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? C टू B जा रहा है, so displacement is in like this and the force of gravity is still like this, mg downwards, so work done by gravity is zero because they are in angle is 90, so work done by gravity is zero. Understood? So what is the work done in path A to C to B? mgh. तो यहाँ पे चाहे आप मस्ती करके गए A to C to B तब भी वर्क डन उतना ही आया, चाहे आप सीधे गए तब भी वर्क डन उतना ही आया। कौन सा दैट? और ये दैट क्या होता है? सीधे ए टू सी, ए टू सी में देख फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना mg नहीं है, mg तो नीचे की तरफ लगता है, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे ना जो इस तरफ लगता है? और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? h बाई साइन थीटा और h cosec थीटा, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? mgh। ओ दैट इज रिजोल्यूशन नो, अगर ये mg है, mg नीचे की तरफ लगता है, ये तो पता है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना है? ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना है? 90 माइनस थीटा होता है, जैसे ये 30 है तो 60 होता है ना, ये 40 है तो 50 होता है, ये 40 तो ये 50, तो इसके साथ परपेंडिकुलर जब बनाओगे ना तो ये एंगल फिर थीटा बचता है, ये एंगल थीटा बचता है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है? mg cos, और ये वाला कंपोनेंट mg, ठीक है? ओके एवरीवन, लिख लो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लिखो जल्दी से, और लिखो देयरफॉर द वर्क डन ऑफ ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट, work done by gravity, a work done of gravity is path independent. Done? जल्दी लिखो जल्दी।
Okay, right, work energy theorem. Right, work energy, kinetic energy तो समझ में आया ना, पता है हाफ एम स्क्वायर नो. Now write work energy theorem. ठीक है. Kinetic energy is due to what? Like what kind of energy it is? It is due to, yeah, due to motion. Okay, translation motion or ठीक है, basically due to motion. Fine. Oh, that's the word kinetic. Kinetic, yeah. Right, work energy theorem. The work energy theorem is the work done by, क्या लिखा है, क्या है ये लिखो, work done by all the forces. Work done by all the forces. It could be either conservative forces plus non-conservative. यार मैं ये मोमो क्यों लिख रहा हूँ, non-conservative forces is equal to delta Ke. Is equal to delta Ke. हुई तुझे डन. ठीक है, अब लिखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू ऑल. ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, refer figure. Okay, तो एक क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल. Object is flowing with the air of the object. An object of mass 5 kg falls from rest through a vertical distance 20 meter. So object of mass, it was at rest at top. It falls by a 20 meter distance height and नीचे इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, क्वेश्चन पूछा और जी का वैल्यू 10 लेना है आपको. क्वेश्चन ये है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना है. वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज हाउ मच. ठीक है, तो सिंपल है, वर्क डन बाय, इस पे स्टोन पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? mg लगा रहा है, और क्या लगा रहा है? एयर रेजिस्टेंस लगा रहा है. तो दो का वर्क मिला के इसका क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? पहले कितनी थी? हाफ इंटू एम इंटू, हाँ, विच इज वी कितना है? 0. तो पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? 0 थी. बाद में कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? 250 जूल थी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है? चेंज 250 जूल हुआ है. दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस. निकाल लो, हो जाएगा. ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस. So work done by gravity plus work done by air resistance is equal to 250 जूल. ये सबको समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट? अब ग्रेविटी का वर्क कितना? ग्रेविटी किस तरफ लगती है? नीचे की तरफ. स्टोन किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ. तो डायरेक्टली क्या होगा? mgh. अभी mgh कितना आएगा? मास इज 5, g इज 10 और h इज
20, तो कितना आएगा mgh? 1000 आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया 1000, वेरी गुड, ठीक, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 250, तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस कितना आया? -750 जूल, सॉरी न्यूटन लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1000 न्यूटन नहीं है, why am I behaving like Harshal? Yeah, -750 joule, okay, fine. वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस से नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस किस तरफ लग रहा था? अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? नीचे, therefore the work done by air resistance has come out to be negative, okay, Sir, how is work done by gravity 1000? in which work done by gravity is the force of gravity into dot displacement, okay, Okay. force of gravity is in which direction and how much is it? 10 downwards. फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछा, फोर्स कितना होता है? Mass into acceleration. मास कितना है? 5 kg. और जी कितना है? 10 तो 50. 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? mgh है ना, वर्क डन बाय फोर्स, सॉरी, क्योंकि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज f डॉट s, displacement is also downward, 50 meters. force is So 50 into 20. Yeah. okay everyone, समझ में आ गया कि नहीं गाइस? देखिए अभी आपको क्या करना है, एक ऐसे स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग ऐसे सीधे रहेगी, पेंडुलम बनाना है, ठीक है, पेंडुलम का मास m है, लेंथ l है, ठीक है, ठीक है, पेंडुलम, फिर पेंडुलम को घुमा देंगे बाय एन एंगल थीटा, अगर घुमा देंगे तो ये ऐसे घूमेगा सर्कल में, राइट, सर्कल में घूमेगा, अभी ये इधर आ गया, ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा। अच्छा ध्वनि, ये लेंथ कितनी है? ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं ये क्या है? ये चीज पेंडुलम है, तो ये क्या चीज? स्ट्रिंग है, तो ये कितना लेंथ है? ध्वनि हैज लॉस्ट ऑल कॉमन सेंस दीस डेज। ये स्ट्रिंग है, तो ये कितना लेंथ है? इसका लेंथ L है, तो ये लेंथ कितना है? L, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक चीज निकालनी होती है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। हाँ, बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि इसको ना उठा के एक फोर्स ना ऐसे लगा रहे थे, एक फोर्स हॉरिजॉन्टली लगा रहे थे, फोर्स, ओके, और वो हमेशा हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं, सेम उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्या लगा रहे हैं? हॉरिजॉन्टली यू आर अप्लाइंग अ मैग्नीट्यूड F force, you are applying a force F in the horizontal direction so that string goes from point A to point B, okay. Now they're asking what is the work done by this green force, ठीक है। ग्रेजुअली, ये सब काम ग्रेजुअली हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एवरीथिंग इज डन gradually, okay, gradually means slowly. If it is done slowly, then what is the speed of the bob at B? Yeah, the speed of bob at A, bob is by the way the mass, bob is the mass का speed at A कितना था? mass, sorry, speed of mass कितना था इनिशियली? 0, और ये काम हुआ है ग्रेजुअली, फाइनली कितना है स्पीड? 0, क्या है? 0, यस, ग्रेजुअली मतलब हौले हौले, धीमे धीमे, slowly, therefore the bob does not attain speed, yeah, okay, therefore what is the speed at B? 0. So what is the change in kinetic energy? Yes, right, that's important, change in kinetic energy is 0. क्या हुआ?
ठीक है. Now who is doing work on this? Very good. mg and air नहीं है. कौन है? कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो वर्क डन. देखो वेरी गुड. पहले ये देखो कितने फोर्स. एक लग रहा है mg नीचे की तरफ, एक लग रहा है टेंशन ऐसे, और एक लग रहा है एफ. तो 3 फोर्स लग रहे हैं ना. तो वर्क का जब लिखोगे तो वर्क डन बाई एक तो टेंशन आएगा, प्लस वर्क डन बाई mg आएगा, प्लस वर्क डन बाई एफ आएगा, और इन दोनों का सम कितना होगा? 0. 0 क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा के इज 0. लिखो जल्दी से. ओके फाइन. ठीक. ठीक है. ओके. अब देखो वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है. क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. तो ग्रेविटी का वर्क डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है. आप सीधे क्या करो, फोर्स निकालो और इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालो, बिकॉज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट. तो इनिशियली कहाँ है ऑब्जेक्ट? यहाँ है. अब देख एक करके वर्क निकाल लेंगे. क्या यहाँ है? और फाइनली कहाँ है? यहाँ है. ग्रेविटी किस तरफ लग रही है? नीचे. नीचे किस तरफ? नीचे. यस, ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ हमेशा ना. और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? हाँ. देखो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ऐसा हुआ, यस और नो. इस डिस्प्लेसमेंट को ना 2 पार्ट में तोड़ देंगे. एक ऐसा और एक ऐसा. ये वाला पार्ट मैटर नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स. समझ में आया? द ग्रेविटी. ग्रेविटी किस तरफ लग रही? नीचे ना. देखो यही समझो बात को. ग्रेविटी लग रही नीचे हमेशा. नीचे 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 हमेशा नीचे इस तरफ लग रही है. ठीक है. तो एनी डिस्प्लेसमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी does not matter. That work does not matter, right? Any displacement which is perpendicular to gravity, that displacement's work does not matter. तुमको ये बात समझ में नहीं आई तो वापस आओ इधर देखो. A to B गए थे तो उसका वर्क कितना आया था? mgh आया था. A to C गए थे तो वर्क कितना आया था? mgh आया था. C to B जाने का वर्क 0 है. Any work which is, सब लोग स्क्रीन पे देखो, हॉरिजॉन्टल इन दिस डायरेक्शन, उसका वर्क बाय ग्रेविटी कितना है? समझ में आ रहा है? 0. आप A से B गए, वर्क आया उतना ही जितना यहां से यहां आया. इसका मतलब आप सेम वर्टिकल लेवल से सेम वर्टिकल लेवल पे गए हो. समझ में आया? अगर आप इधर से इधर भी जाते ना तब भी वर्क कितना आता? कितना आता वर्क बाय ग्रेविटी? mgh ही आता. इधर से इधर जाते तो भी वर्क mgh, क्योंकि आप सेम हाइट डिसेंड कर रहे हो. क्या है? सेम हाइट डिसेंड कर रहे हो. समझ में आया? और इनफैक्ट सीधे क्यों, ऐसे ऐसे भी जाते हैं ना तब भी वर्क कितना आता? क्योंकि आप सेम हाइट डिसेंड कर रहे हो. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? कितना हाइट आप नीचे या ऊपर गए हो. अगर नीचे आए हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mgh. अगर ऊपर गए हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? Yes, minus mgh. If you go down by height h, work done by gravity is mgh. If you go up by height h,
If you go up by height h, if you go up by height h, आज 13 अगस्त है ना, ठीक है 13 है आज, ठीक है ओके। सो यहाँ पे कितना हाइट ऊपर गया बॉब, बस ये निकालना है, कितना हाइट ऊपर गया देखो ऐसे निकालते हैं, ध्यान से देखना ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर डालो इस पे, ठीक है क्या डालो, परपेंडिकुलर, फटाफट डालो, ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर डालो एक यहाँ पे, अब द सॉरी सॉरी अब सी दिस ट्रायंगल, द cos थीटा, राइट, दिस ट्रायंगल में ना ये वाला लेंथ L नहीं है, ठीक है L से छोटा है, ओके इस ट्रायंगल में जो ये वाला लेंथ है ये L नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूज इसका L है, ठीक है। cos थीटा क्या लिखोगे बताओ, cos थीटा लिखोगे, नहीं नहीं ये, अरे ये देखो ये इसको लिख लो, इसको y लिख लो, ठीक है इस लेंथ को, तो cos थीटा कितना होगा, y by l, तो y कितना हुआ, l cos थीटा, लिखो y इज l cos थीटा। तो मुझे सोचना थोड़ा सा, ये बताओ, अब देखो देखना ध्यान से, अब स्क्रीन पे देखो ध्यान से, स्क्रीन पे देखो, ये पूरा लेंथ कितना है l, उसमें से ये पार्ट कितना है y विच इज l cos थीटा, तो ये पूरा बड़ा वाला एरो के आगे लिखो l, बड़ा वाला एरो बनाओ, बड़ा वाला एरो पूरा है l, और छोटा वाला एरो कितना है l cos थीटा। तो देखो बॉल जो है वो यहाँ था, इस हाइट पे था, और इस साइड पे चला गया, यस और नो, बॉल देखो, बॉल देखो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उसका हाइट तो सेम है ना, तो बॉल बेसिकली कहां से गया है, इस हाइट से कहां तक गया, इस हाइट पे, तो कितना हाइट गेन किया उसने, L minus L cos theta. L minus L, देखो बॉल हैज गेन्ड द हाइट ऑफ L minus L cos थीटा, बॉल हैज गेन्ड द हाइट ऑफ L minus L cos थीटा। Has everyone understood this? Has it not gained a height? See the figure. Okay. Is L minus L cos theta a positive quantity or a negative quantity? It's a positive quantity. Positive. Yes. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे फिर, अच्छा L माइनस एल cos थीटा ऊपर की तरफ है ना, और ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आएगा वो आएगा प्यारा सा, ये आएगा माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा। थोड़ी देर सोचो, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है ये, सोचो सोचो दिमाग लगाओ। So you took L common, that's why. L कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा लिख दिया, है ना, mgl ऑफ 1 माइनस cos थीटा, ठीक है समझ में आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। वर्क डन बाय टेंशन देखो, किसी भी पॉइंट पे बॉब को ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट पे जो बॉब है, इस पॉइंट पे बॉब है, सॉरी, जब तुम उसको खींचने की कोशिश करते हो किस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, अलोंग दिस, है ना, अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, और टेंशन किस तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर टेंशन, परपेंडिकुलर, यस, एट एनी पॉइंट बॉब, अभी मान लो बॉब ना इधर पे है, उसका डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट एंड द टेंशन इज अलोंग द स्ट्रिंग, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ऑलवेज, समझ में आया, लिखो वर्क डन बाय टेंशन इज 0 बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंशन। वर्क डन बाय टेंशन 0 हो गया, वर्क डन बाय WF इज प्लस mgl माइनस cos थीटा, ओके। वर्क डन बाय mg इज प्लस
and work done by F. Sorry. Guys, have you understood? Work done by the tension is equal to किसी भी वर्क का किसी भी फोर्स का वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. टेंशन किस तरफ लग रहा है? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द स्ट्रिंग. हमेशा जैसे इस पॉइंट पे टेंशन कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है. इस पॉइंट पे टेंशन कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है. इस पॉइंट पे ऐसा ऐसा. अगर ये सर्कल है, सर्कल के किस तरफ? सेंटर की तरफ. और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? हमेशा अलोंग द tangent, right? General statement लिखना है, work done by any force which is centripetal is always क्या? Zero. और ब्रैकेट में लिख देना if the object is moving on a circle. देखो एक और क्वेश्चन. एक slowly hauls up a hill at force F at which point runs along the tangent of the directly. Oh, nice. Find the if the height of the hill is h, the height length of its base is 1, and the coefficient of friction is mu. तो यहाँ पे ना एक ऐसे रैंडम सा हिल बना है. यस, रैंडम सा हिल बना है. ठीक है, इस पे ना फ्रिक्शन भी है मस्त. देखो कोएफिशिएंट इस पे फ्रिक्शन भी है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. Yeah. The base of the height, the base is L, the height is H. There is a block. Okay, there is a block. You are applying a force F such that F is always tangent to the path. ठीक है, tangent to the path का मतलब है फोर्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. अगर ब्लॉक ऐसे है तो फोर्स ऐसा लग रहा है, अगर ब्लॉक ऐसे है तो फोर्स ऐसा लग रहा है, अगर ब्लॉक ऐसे है तो फोर्स ऐसा लग रहा है. ठीक है, इट इज ऑलवेज F इज ऑलवेज क्या लिखो? लिखो F इज ऑलवेज tangent to the path, tangent to the trajectory or tangent to the path. Okay, mass M, ठीक है. Sorry. Okay, you have to find the work done by this force. All right, this is because this block is moved slowly. This block is moved slowly. मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? जी लो. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जी लो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो. ओके ओके, because it is moved slowly. Slowly is like this. Speed at any time is zero. Snail. It's a snail. Yeah, correct. Good question. So you are taking how much time to go this hill, up this hill? Hey, give me an idea. That is fast. Still, that is fast. That is fast. 1 hour snail will take, right? 1 hour snail will take, no? Okay, let's say we will take 1 hour. But if we move, you will see me moving, right? That's what she's saying. What if a snail is moving? Few years.
So, but still snail has non-zero velocity, no? The time taken when you say slowly, physics-wise, it is infinite. Okay. So technically, you go by dx every time. Dx. Okay. ठीक है. Okay, right. Four forces are acting. Which forces are acting on this block? देखो, एक किसी भी ब्लॉक कहीं पर भी उस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है कितना? mg. एक फोर्स और क्या लग रहा है? mg डाउनवर्ड्स है. हाँ भाई, mg जैसे मान लो इधर भी लग रहा है तो डाउनवर्ड्स लग रहा है. डाउनवर्ड्स mg. और क्या लग रहा है? कौन सा? एक तो ये फोर्स लग रहा है. चलो दो हो गए. और नॉर्मल. नॉर्मल कैसे लगता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द पाथ लगता है ना. हमेशा नॉर्मल तो मतलब नाम ही उसका नॉर्मल है. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. और एक और लग रहा है. कौन सा? फ्रिक्शन. पीछे वो कर लगता है, पीछे की तरफ लगता है ना फ्रिक्शन हमेशा. वो भी टेंजेंट ट्रैजेक्टरी लगेगा लेकिन पीछे की तरफ लगेगा. ठीक है. तो दो देखो, कुछ फोर्सेस एकदम डायरेक्शन एकदम सेम है. mg कैसा भी पाथ हो, ऊपर नीचे कैसे भी जा रहे हो, हिल जैसे भी जा रहे हो, mg हमेशा कैसे? वर्टिकली डाउनवर्ड. जो नॉर्मल है वो पाथ पे डिपेंड करता है लेकिन हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर लगता है. पाथ के परपेंडिकुलर. और जो फ्रिक्शन है वो हमेशा लगता है पाथ के ऑपोजिट. टेंजेंट ही लगता है बट ऑपोजिट. ठीक है. इस केस में एफ जो है उसका अलग से डायरेक्शन दे रखा है. ये वो टेंजेंट है, वही उसी का डायरेक्शन नहीं पता था, डायरेक्शन दे रखा है उन्होंने कि एफ इज ऑलवेज टेंजेंट. ठीक है. That's always opposite to friction. करेक्ट. In this करेक्ट. यस. इज द ब्लॉक ऑलवेज मूविंग? Yes. Right. If it is moving, it is a case of static friction or a kinetic friction. Yeah. That means the lock is always broken. Right. If the lock is always broken, how much is the value of friction? Which is mu n. Mu n, right? तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? म्यू एन लग रहा है. ओके. ओके. नाउ in going from this point to this point, तुम ना इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय कैपिटल एफ प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो. जीरो क्यों है? mg इज जीरो. फाइनल. इसमें से सीधे सीधे बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है? वाई. क्या नॉर्मल हमेशा ऐसे लगता है चीज ऐसे मूव कर रही है ना, हमेशा. तो ये जीरो है. ठीक है. इसका वर्क कितना है? वर्क डन बाय mg. mg minus mgh minus mg capital H because it is simply the height which gained height difference, right? क्या तुम हाइट ऊपर गए हो कि नीचे गए हो? हाइट h. तुम यहाँ पे थे, कितनी हाइट है तुम्हारी? ये हॉरिजॉन्टल है. फाइनली कहाँ? यहाँ पहुंच गए हो. तो कितनी हाइट चेंज हुई है? क्या है? कैपिटल H. ऊपर गए कि नीचे गए? इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh. ठीक है. ये जीरो. हेलो. हेलो. यस. If this is this
और ये पाथ चेंज हो रहा है ना, इसका एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है. बट लेट अस टेक एनी स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस. ओके, एनी स्मॉल section of this where it is a very small section of this. Okay, straight theta, this is y, this is x. Okay, and the block goes from this point to this point. Okay, in this section the f c for the theta changes for different sections of the plank. The theta changes. Do you understand this? Hmm? Okay, and the sum of all these small y's is what? How much? A capital H, right? And the sum of all these small x's is L, right? Okay. Now this is f, this is n, this is small f and mg, right? ठीक है. तुमको क्या हुआ? ये इसका किसका किसका वर्ग जीरो है, इसका वर्ग जीरो है, और हाँ इसका वर्ग हम ग्रेविटी का वर्ग निकाल चुके हैं, है ना? ठीक है. तो देयरफॉर अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखो कितना. फ्रिक्शन ऐसे पीछे लगता है. वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इट इज इक्वल टू म्यू एन. तो कितना लग रहा है? ये म्यू एन लग रहा है, ठीक है. और यहाँ पे म्यू एन एक चीज है, एफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय, सॉरी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Force of friction is, what I'll do is, force of friction निकालना है, it is mu n. n का वैल्यू जो होता है वो होता है mg cos theta. So mu mg cos theta, that is the force of friction, mu n, and is equal to mu to the work done by friction, dwf is work done by friction पीछे की तरफ dot mu mg cos theta, which is the force, into the displacement. Displacement is ये displacement कितना है? ये displacement है x by नहीं, cos theta. Displacement is hypotenuse, let's call it h, hypotenuse h, and it is cos theta is equal to x by h. Cos theta is equal to x by h. So h is equal to x by cos theta. Yeah, h is equal to x by cos theta. So this is x by cos theta. Cos theta cos again mu mgh. Okay, yes. Vn. एक मिनट, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, ठीक, ऐसा लग रहा है. डिस्प्लेसमेंट ऐसे है. कितनी डिस्प्लेसमेंट है इस सेक्शन में? इट इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज है h, h is x by cos theta, और फ्रिक्शन है mu mg cos theta. हाँ तो सही है ना? हाँ सही है, सही है. mu mg x कर कर कर. सी लिसन, फ्रिक्शन लग रही है ऐसे. फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू इंटू एन, राइट? म्यू mg cos theta, राइट? और ये डिस्प्लेसमेंट देखो, ये डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैं हाइपोटेन्यूज बोलता h, स्मॉल h, ठीक है. तो cos थीटा कितना हो जाएगा? x by h. यस और नो? सो द वर्क डन बाय फ्रिक्शन dwf is mu mg force, which is mu mg cos theta into displacement. कितना डिस्प्लेसमेंट? h by cos theta. ये cos theta जाएगा. अच्छा, बाय द वे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स किस तरफ है? ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे है? ऐसे. तो ये आएगा माइनस म्यू mg cos theta x. समझ में आया? फॉर दिस स्मॉल सेक्शन द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू mg cos theta into x. x कौन सा डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. समझ में आया? फॉर दिस स्मॉल सेक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू mg cos theta x. अभी बताओ फॉर द होल सेक्शन कितना आएगा? l. लिटिल बस हो गया. वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू mg cos theta l.
ठीक है, ओके। अभी हाँ, अभी ये क्वेश्चंस ट्राई करो। चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस 9.2 एक्सरसाइज है, इसको ट्राई करना है, ठीक है। हम्म। करो करो, क्लिक तो करो इसमें। अरे ऐसे नहीं, क्लिक करो तुम, ओपन फाइल करो, बड़ा करो, बड़ा। अरे वो बड़ा वाला है ना, हाँ ये। अभी ये भी कर दो। नहीं 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 नहीं, उस वहां पे राइट क्लिक करो, इमेज पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक हो रहा है, हाँ ये हो गया। अब बड़ा कर दो। 500 नहीं, 200 करो। हाँ चलो करो। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 5 करना है, 1 2 5 8, 1 2 5 7 8, 1 2 5 7 8 करना है, ठीक है।